गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इन अ प्रीवियस डिस्कशंस वी हैव कंसंट्रेटेड इन gravitational potential, that is gravitational potential at any point in the gravitational field. Okay, and we have calculated gravitational potential at any point due to a single point mass. Now, gravitational potential at any point due to a point mass m. Okay, this is point mass m, and the point at which we want to calculate we had calculated rather. Okay, this is point P. At this point we have calculated the potential when this point is situated at a distance r from the mass, and we got the relation as potential at this point P as minus g mass, which is producing the gravitational field, over the separation. Now this negative sign was conveying this particular thing that the gravitational field is attractive in nature. इतना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें एक सिंगल मास के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। नाउ अब आपको अगर मैं एक और टास्क दूं कि वी हैव मैनी पार्टिकल्स इन द सिस्टम, ओके, and at some particular point you are told to calculate the gravitational potential due to many particles having masses m1 m2 so on. Okay, fine. So how you will be going ahead to calculate it? Okay, let's take a situation to understand it better. Find potential at J in the given system of masses. Okay, more than one mass we have in the system, and we are told to find the potential at any point. Potential, which potential we are talking of? That is gravitational potential. Gravitational potential. It's okay. The system is shown in figure. Say the system as given is containing two masses, point masses. This is m1. This mass is m2. It's okay. Now, this length of this side is A. Length of this side is B. Okay. और हमें कहा गया कि इस पॉइंट J के ऊपर, दिस इज पॉइंट J पे पोटेंशियल फाइंड करो। ओके, नाउ अब यहां पे हम करने वाले क्या है? ठीक, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि पोटेंशियल एट पॉइंट J m1 के कारण भी होगा, m2 के कारण भी होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने कहा है कि J पॉइंट जो है इन दोनों के फील्ड में है, तो m1 के कारण भी यहां पोटेंशियल होगा, m2 के कारण भी यहां पोटेंशियल होगा। नाउ द थिंग इज कि जब हम m1 के कारण यहां पे पोटेंशियल की बात करेंगे, एट दैट टाइम वी विल नॉट बी कंसंट्रेटिंग इन मास m2. m2 की बात नहीं होगी। ओके, एंड व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग potential at point J due to mass m2, we will not be thinking of mass m1. Both the masses will be contributing to potential at point J individually and independent of each other. जो potential m1 यहां बनाएगा ना, m2 is not going to affect that potential. जो पोटेंशियल m2 यहां बनाएगा, m1 इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट पोटेंशियल। ओके, तो फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एट J ड्यू टू मास m1 एंड m2 इंडिविजुअली। नाउ एज potential is a scalar quantity, ठीक,
तो फिर हम टोटल पोटेंशियल एट जे फाइंड करेंगे। स्केलर्स को कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट एडिशन। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टू रिजॉल्व द इशू। फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एट जे ड्यू टू मास m1। ओके, ठीक है, लेट द पोटेंशियल इज v1। दिस विल बी इक्वल टू माइनस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, mass is m1. Due to this m1 we are calculating the potential divided by separation, that is b. It's okay. Potential being a scalar quantity will not be having any direction. ठीक है, it will be having magnitude only. It's okay. Now let's calculate potential at j due to mass m2. Now potential at j due to mass m2 क्या होगा? Let the value is v2. Okay, ठीक है, potential is v2 due to mass m2 at point j. तो v2 का वैल्यू कितना होगा? मास सबसे पहले माइनस g, that is universal gravitational constant, then mass is m2 over separation of the point from the mass, that is a. Now we have got value of potential due to m1 at j, value of potential due to mass m2 at j. Now total potential at j. Now total gravitational potential at j क्या होगा? Potential being a scalar quantity है ना, क्या होगा? Total potential is equal to potential 1 के कारण प्लस potential due to mass m2 के कारण। ओके, तो टोटल पोटेंशियल V will be equal to V1 plus V2। इट्स ओके, दोनों का वैल्यूज डाल देते हैं। V is equal to V1 is minus G m1 over B। इट्स ओके, देन प्लस माइनस G m2 over a। इट्स ओके, अब क्या करेंगे इसमें? माइनस g, ओके, कॉमन आ जाएगा एंड वी कैन हैव द थिंग लाइक दिस। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू नेगेटिव g कॉमन, ओके, एंड दिस इज m1 by b plus m2 by a. This is total potential at point j due to given system of masses. Mean like this you will be calculating, okay, the potential at any point due to a system which is containing more than one particle. यहां पे हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ दो पार्टिकल्स थे। We were having only two particles, okay, one of mass m1, another of mass m2. System can have 3 masses, can have 4 masses, can have 5 or so on, as many masses the system can have. This is the same way you will be proceeding. You will be calculating the potential at the point, okay, जिस point पे भी potential find करना है, you will be calculating the potential at the point individually due to every mass. As many masses you will be having in the system, and after that potential being a scalar quantity सबके magnitude का direct sum कर देना है, as we have done over here, okay, and after this we will be able to get the total potential at the point. Hope you have understood. Okay, now let's move ahead to calculate the potential energy. Okay, potential energy of the system of masses containing more than 2 masses. In the situation of 2 masses, I told you, है ना? Now more than 2 masses. Now gravitational potential energy of a system of masses, okay, and the system of masses is containing more than 2 masses.
Now, in case of a system which is containing two masses, which is containing two particles of masses m1 and m2, we already have calculated the potential energy. Hope you are aware of that. Now, potential energy of a system containing two masses, m1 and m2, situated at a distance r from each other, already we have calculated. Yes, and the result was U is equal to minus G m1 m2 over r. Fine. ठीक है. Now, in this situation, what we want? We want to calculate the potential energy of a system of masses, okay, which is having more than two masses. एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो से ज्यादा masses है. Fine. So, for its better understanding, let's take a situation. Fine. Find the gravitational potential energy of given mass system. Okay, when these masses, okay, m each, mean 4 equal masses, are situated at, corners, okay, of ABCD, and this ABCD is a square having each side r. Okay, ABCD is a square having each side r. It's okay. हमें इस सिस्टम का, इस मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. तो हाउ वी विल बी गोइंग अहेड. ठीक है ना, टू पार्टिकल्स का तो आपको पता है. ठीक है ना, बस टू पार्टिकल्स के पेयर ही कंसीडर करके, ठीक है ना, हम इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ओके फाइंड करेंगे. कैसे? सी दैट. नाउ फर्स्ट कंसीडर, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए m1 m2 बना लेते हैं. दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. m1 m2 m3 एंड m4, दीज आर फोर मासेस. ठीक. नाउ वी विल बी कंसीडरिंग द टू मासेस इन पेयर. ठीक है, और इंडिविजुअली हर पेयर के सिचुएशन का हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए हम उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे. ओके, तो लेट्स मूव अहेड to calculate the potential energy of the system, that is gravitational potential energy of the system. First we are taking mass m1 and m2 in consideration. मतलब हम पहले ये m1 m2 वाला सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, टू मास सिस्टम. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, माइनस जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन m1 m2 ओवर सेपरेशन इज AB. इसके वैल्यूज हम बाद में डालेंगे. इट्स ओके. नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे. ठीक. अब ध्यान देने की बात यह है कि जब मैंने m1 m2 पेयर का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया, ओके, तो ये 1 ड्यू टू 2 2 ड्यू टू 1 वो सारे के सारे चीजें इंक्लूड कर रहा है. मीन पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m12 सिस्टम. Now, potential energy of 1-3 pair of masses plus minus G m1 m3 over AC, separation between m1 and m3. It's okay. Now, इस 1 का पेयर फोर्थ के साथ, 1 का पेयर सेकंड के साथ हो गया कंसीडर, 1 का 3 के साथ, एंड देन 1 का 4 के साथ, प्लस माइनस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m4 ओवर सेपरेशन AD. इट्स ओके. नाउ इन द सेम वे आप सेकंड के रिस्पेक्ट में पेयर्स चेक करो. ठीक है, सेकंड के रिस्पेक्ट में पहला पेयर जो बनता है वो बनता है 1 का. सेकंड 1-2 सिस्टम, 1-2 जो सेकंड के रिस्पेक्ट में 1 का है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी, उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड.
ठीक है। नाउ सेकंड का थर्ड के साथ जो पेयर बनेगा, प्लस माइनस Gm2 M3 over separation between M2 and M3, that is BC, प्लस सेकंड का फोर्थ के साथ पेयर, फाइन, इसका पोटेंशियल एनर्जी Gm2 M4, 2 4 के पेयर की बात हो रही है ना। नाउ BD, सेपरेशन बिटवीन, दैट इज BD। नाउ सेकंड के साथ सारे पेयर अकाउंट में आ गए हैं। 2 के साथ 1, ये यहां पे ऑलरेडी हम लिख चुके थे। 2 के साथ 3, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ठीक है। नाउ पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू मास थर्ड, ठीक है, थर्ड मास के रिस्पेक्ट में जो पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड के रिस्पेक्ट में 1 का पेयर, 3 1 पेयर का पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 3 का 2 के साथ पेयर, 3 का 2 के साथ पेयर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। नाउ 3 का 4 के साथ वी हैव नॉट इंडक्टेड इन, तो माइनस Gm3 M4 ओवर CD, इट्स ओके, ठीक है। तो 3 के रिस्पेक्ट में सभी पेयर्स आ गए। नाउ फोर्थ के रिस्पेक्ट में 1 ऑलरेडी कंसीडर्ड, फोर्थ के रिस्पेक्ट में 2 ऑलरेडी कंसीडर्ड, फोर्थ के रिस्पेक्ट में 3 ऑलरेडी कंसीडर्ड, ओके। तो दिस ऑल ओके, ये जितना भी सम है ना इन 6 टर्म्स का, दिस विल बी प्रोवाइडिंग मी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस गिवन सिस्टम। अब हमने क्या कहा है, ईच साइड R, ये जो ABCD है, दिस इज अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड R, ठीक है। अब सभी वैल्यूज मैं प्लेस कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। AB का वैल्यू कितना आएगा, AB इज इक्वल टू R, AB इज इक्वल टू R, ठीक है। AC इज अ डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बना 2A स्क्वायर अंडर रूट 2A, AC अंडर रूट 2R, ठीक है। नाउ AD that also is R, ठीक, AD is R. After that we require BC again is R, fine. Then we need BD that is a diagonal, root 2R, BD is equal to root 2 times R, okay. Now CD, last term, CD is R, CD is equal to R. Now placing these all values, okay, ठीक है, चलो करते हैं प्रोसीड। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब माइनस G कॉमन, माइनस नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दो, ये लो माइनस G कॉमन, अभी और भी कॉमन निकलेंगे, फिर वो देखते हैं उनको, ठीक। ये लो बेटा, M1 M2 ओवर AB इज R, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू R, ये लो, प्लस M2 M4 डिवाइडेड बाय BD नहीं, डिवाइडेड बाय AC, सॉरी, AC इज रूट 2R, डायगोनल रूट 2R, प्लस M1 M4 डिवाइडेड बाय AD इज R, प्लस M2 M3 ओवर BC is again R, plus M2 M4 divide by M2 M4 divided by BD, है ना, BD is root 2R plus M3 M4
m3 m4 डिवाइड बाय cd, cd इज r। अब देख लो यहां से r भी आपका कॉमन आ रहा है, तो प्लेसिंग r एट कॉमन, ठीक है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस g ओवर r, एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी आर हैविंग m1 m2 प्लस m2 m4 ओवर रूट 2 प्लस m1 m4 ओवर r, r तो नहीं, ये लो r तो कॉमन चला जा, ठीक है। दिस इज m1 m4 प्लस m2 m3, r कॉमन, देन m2 m4 ओवर रूट 2, m2 m4 ओवर r कॉमन, तो ये रूट 2 प्लस m3 m4 r कॉमन। ओके, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गया बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन सिस्टम, दैट इज ये जो हमारा ABCD स्क्वायर है। ओके, ऑन ईच कॉर्नर masses m1 m2 m3 m4 are situated and the square have each side equal to r, तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ रहा है। I told you the basic methodology कि अगर दो से ज्यादा पार्टिकल्स एक सिस्टम में हैं, ओके, then how you will be calculating the potential energy of the system, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे आपको एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है ना। यू ट्राई सॉल्विंग दैट, फाइन। The situation is, calculate work done in expanding the given mass system from A, B, C, D to A prime, B prime, C prime, D prime. Okay? A, B, C, D to A prime, B prime, C prime, D prime. When this A, B, C, D, okay, is a square having each side A. ठीक है? And that A prime, B prime, C prime and D prime, okay, that is also a square, okay, also a square having each side to A. Fine, मतलब ये एक ABCD सिस्टम है, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स के ऊपर मासेस m रखे हैं, इक्वल हैं। हमने इन सब को मासेस को दूर दूर कर दिया, डिस्टेंस बढ़ाया इनका, और फाइनली हमने इसको A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम, ओके, ये जो है एक स्क्वायर बना रहे हैं हैविंग ईच साइड टू A, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सपैंडिंग द गिवन सिस्टम, गिवन मास सिस्टम फ्रॉम ABCD, that is initial situation, to A prime, B prime, C prime, D prime, that is final situation. Okay, now बड़े आराम से तुम्हें बता दूं, ओके, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, ओके, कैलकुलेट करना आना चाहिए। इफ यू आर नोइंग दैट थिंग, अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा, देन इजीली यू विल बी एबल टू प्रोसेस द सिचुएशन, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस दिस सिचुएशन, देन गो थ्रू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन एंड देन ट्राई सॉल्विंग दिस सिचुएशन, ओके। तो होप you have understood the basic concept behind potential and potential energy for n particle system, okay. So go through the content given there in your book, fine, and if you find any kind of confusion, let me know about, then we will be taking that particular thing in the next lecture, okay. Thank you, have a nice time.